Hello dear students, today we will see a problem on section of solid and development of lateral surfaces. The prerequisite for this lecture is projection of solids. If you are clear with the concept of projection of solid, this topic will be really easy for you to understand. So the problem here is a vertical hexagonal prism, side of base 40 mm, axis height 90 mm, has its two sides of base parallel to VP. A section plane cuts the prism such that it passes through the extreme left bottom corner and extreme right top corner of the prism. Draw its projections, true shape of the section, and show the development of lateral surfaces of the remaining portion of the prism. So the very first is we have to identify the solid. So it's an hexagonal prism of given dimension. The second is what will be the orientation of the solid. It is placed such a way that it has two sides parallel to VP, right? So with this orientation, initially we'll draw a line XY. We draw a line. Take a proper suitable layout such that the development as well as the sectional top view, the true shape can be accommodated in a single page. That is very important. So we have given side of the base. Side of the base कितना दिया है हमें 40 mm. So 40 mm रेडियस हमें क्या लेना है, कंपास में लेना है. 40 कंपास में लेंगे और हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का सर्कल बनाएंगे, राइट. सो वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल in such a way that जो भी साइड है हेक्सागोन का 40 mm, तो 40 mm क्या रहेगा, हमारा रेडियस रहेगा. So with the given radius we divide the circle into 6 equal part, right. So we have marked the diameter of the circle, distance equal to the radius of the compass. We mark 6 point to get a hexagon. ऐसा हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ओरिएंटेशन दिया है. हमें बोला गया है प्रॉब्लम में टू साइड्स ऑफ द हेक्सागन आर पैरेलल टू VP, पैरेलल टू vertical plane. So that is why we will have such hexagon with this orientation. So this is how you get the hexagon. Once the hexagon is obtained, you can remove the construction circle. So let us label the figure. So it is A, B, C, D, E and F. So जैसे ये prism है, it will have two hexagonal faces. One is the top face and other is the bottom face. So let A, B, C, D, E, F be the label for the top face, and we'll have G, H, I, J, K and L for the bottom face, right. So with the help of ruler scale, we'll project in the front. So let us project. The given height of the axis is 90. So let the height of the prism is 90. With 90 we make the dimensions. So this will be your point A dash, B dash, C dash and D dash, E dash and F dash. Similarly G dash, H dash, I, J, K dash and L dash. So initially you can make the figure medium dark, क्योंकि सेक्शन प्लेन का पोजीशन के बाद हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा. तो जो रिटेन पोर्शन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डार्क शेड से बनाएंगे, राइट. सो इनिशियली यू कैन कीप द फिगर एज मीडियम डार्क, राइट. अभी हमें यहाँ पे पोजीशन दिया है. इट इज़ मेंशन इन द प्रॉब्लम दैट इट इज़ कटिंग द
bottom corner, extreme and extreme right top corner. So that is how the position of the section plane is there, right? So we need to place our scale in such a way that, and section plane is shown by dot dash thick at the end, right? So this is how you show the section plane, right? So extreme bottom left and extreme top right corner. So this is the position of the section plane. Now what we assume is, हम ये अज्यूम करके चलते कि ये जो हाफ है इसको हमने क्या किया, रिमूव किया. रिमूव करने के बाद कैसा नज़र आता है, दैट विल बी द ट्रू शेप ऑफ द सॉलिड, राइट. नाउ इसके बाद का स्टेप होता है कि ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है सॉलिड. ये सेक्शन प्लेन जब सॉलिड को कट करता है ये कहीं ना कहीं कट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है. तो वी नीड टू लेबल द सेक्शन प्लेन, right? So labeling the section plane is a different task. Let us see that. So इसको लेबल करने का देखते हैं टेक्निक कैसा है. अपर फेस के लेबल्स यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, E, F, right? These are 6 points. और वापस से A लिख देते हैं. ये हो गए अपर फेस के नाम, लेबल्स. अब लोअर फेस के नाम्स क्या है, G, H, I, J, K, L और वापस से G. G से शुरू, G से ख़त्म, A से शुरू, A से ख़त्म. अभी चेक कैसे करना, इसको सीक्वेंस को कैसे चेक करना. सीक्वेंस ख्याल में रखिए. पहले हम ऐसा चेक करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, वापस से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट. इज इट क्लियर, राइट. तो हम चेक करेंगे AG जो साइड है, AG जो एज है, लॉन्गर एज, या ये कहीं पे सेक्शन प्लेन से कट हो रहा है क्या, नहीं, ये कहीं भी सेक्शन प्लेन से कट नहीं हो रहा है, लेकिन पॉइंट G पे कट हो रहा है. तो हम पॉइंट G को सर्कल करेंगे और इसको नाम दे देंगे 1, राइट. नेक्स्ट इज A और B कहीं पे सेक्शन प्लेन से कट हो रहा है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा सेक्शन प्लेन यहाँ पे है, राइट. वी हैव आवर सेक्शन प्लेन ओवर हियर. सो A भी कट नहीं हो रहा है, तो क्रॉस लगा दो. फिर G और H कहीं पे कट हो रहा है क्या, नहीं. नेक्स्ट इज B एंड J, B एंड H, B एंड H कट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है. तो यहाँ पे हो गया सेकेंड पॉइंट. सो यहाँ पे हमने नाम दे दिया. सो दिस इज 1 डैश, यहाँ पे हो गया 2 डैश, ये 2 पॉइंट मिल गया. हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सेक्शन प्लेन सॉलिड को कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये हमारा अभी स्टेप चल रहा है. नेक्स्ट BC कहीं पे कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. HI कहीं पे कट हो रहा है क्या सेक्शन प्लेन से, नहीं हो रहा है. CI कट हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे हो रहा है. तो ये हमारा अगला पॉइंट रहेगा, पॉइंट नंबर 3. सो यहाँ पे लेबल दे दो फ्रंट व्यू में, इसलिए 3 डैश आएगा. फिर दूसरा सीक्वेंस, CD में कहीं पे कट हो रहा है क्या, नहीं. IJ में कहीं पे कट हो रहा है क्या, नहीं. DJ में कहीं पे कट हो रहा है क्या, नहीं. मात्र D जो है ये कॉर्नर पे कट हो रहा है. जैसे G कॉर्नर था तो D को हम स्पेशल केस बोल के कॉर्नर को मार्क कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 4. तो हमें मिल गया यहाँ पे 4 डैश. नेक्स्ट D और E में इंटरसेक्ट हो रहा है क्या सेक्शन प्लेन, नहीं. J और K में कहीं पे कट रहा है क्या प्लेन, नहीं. E एंड K, सो E एंड K में कट हो रहा है, वो बैक साइड है, राइट. दैट इज द बैक साइड ऑफ द हेक्सागन, वो कट हो रहा है. तो उसको नाम देंगे हम व्हाट, 5. यहाँ पे नाम देंगे 5 डैश, फ्रंट में है तो. नेक्स्ट E और F में कट हो रहा है क्या, नहीं. K एंड L में नहीं हो रहा है कट. FL में कट हो रहा है क्या, FL में जी हाँ कट हो रहा है, इसके पीछे रहेगा. तो दैट विल बी पॉइंट नंबर 6. तो दैट इज
6 डैश। तो ऐसे करके हमें 6 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं। मतलब सेक्शन प्लेन जब हेक्सागन को, इस सॉलिड को, प्रिज्म को कट करेगा तो हमें 6 सेक्शन के पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। एक बार रिपीट करता हूँ, हमारा सीक्वेंस रहता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट। हमने चेक किया, जी स्पेशल केस था इसलिए इसको सर्कल करके 1 किया। यहाँ पे कट नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा, बी एच में कट हो रहा है तो उसको नाम दे दिया 2। सी आई में कट हो रहा है, सी आई में 3, डी स्पेशल केस है 4, ई के में कट हो रहा है 3 के बैक साइड आएगा 5, एफ एल में कट हो रहा है 6 डैश, राइट। वापस से एफ और ए में कट हो रहा है क्या? एफ और ए में कहीं पे भी कट नहीं है। एल और जे में, जी में कहीं पे भी कट नहीं है, और जी वापस से स्पेशल केस है तो सेम पॉइंट रिपीट होगा, राइट। तो ये कहीं पे भी बुक में नहीं है, ये मेथड मैं मेरे गुरुजी से सीखा हूँ, राइट। सो दिस इज़ ये मेथड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो ये एक्सपर्ट मेथड है, इसके हेल्प से आप प्रॉपर लेबलिंग ऑफ द सेक्शन प्लेन कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे अभी इंटरसेक्शन मिल गया। अब ये क्या है? हेक्सागोनल प्रिज्म है, इट्स अ सॉलिड, राइट। इसको कट करने के बाद इसमें मटेरियल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सेक्शन है इसको हैचिंग करना पड़ेगा। हैचिंग की कंडीशंस क्या है? हैचिंग लाइंस 45 डिग्रीज पे रहती है नॉर्मली। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक 45 डिग्री लाइन बना लेते हैं, वो रहेगी हमारी रेफरेंस लाइन, राइट। सो ये होगी अभी रेफरेंस लाइन। सो इसके बाद इसको पैरेलल आप क्या करोगे? सारे हैचिंग लाइंस बनाओगे, राइट। सो हैचिंग लाइन बेसिकली आपकी रहेगी एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे को पैरेलल, राइट। तो हम बना रहे हैं सेक्शनल टॉप व्यू। कट करने के बाद टॉप व्यू में हेक्सागन ही नज़र आएगा क्योंकि 6 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 6 पॉइंट है तो हेक्सागन है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट ड्राइंग द हैचिंग लाइन। सो ये है हमारी हैचिंग लाइंस, एक दूसरे के अंदाजे से अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 mm का डिस्टेंस, एंड दे शुड फॉलो इन द रेंज ऑफ 45 डिग्रीज टू 60 डिग्री का टू XY। इतना एंगल से ये हैचिंग लाइंस बनाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर मटेरियल है, सॉलिड है, इसको कट कर दिया है, राइट। अभी जो हमने ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश सेक्शन पॉइंट लिए थे फ्रंट में, टॉप व्यू में भी हमें लेना पड़ेगा, राइट। सो दिस विल बी योर 1 2 3 4 5 एंड 6। कभी भी ख्याल में रखना, जो हैचिंग लाइन रहेगा, जो भी फिगर में हैचिंग लाइन रहेगा, वो फिगर के बॉर्डर्स हमेशा डार्क शेड के रहेंगे, हमेशा डार्क शेड के रहेंगे, राइट। सो नाउ this is called as the sectional top view, right? So this is the sectional front view. ये हिस्सा आपने रिमूव कर दिया, ये हिस्सा रिटेन कर दिया, तो इस हिस्से को हम क्या करेंगे? इस हिस्से को थोड़ा डार्कर शेड से बनाएंगे, राइट। वी विल डार्कन अप दिस शेड। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये बताता है कि नीचे वाला हिस्सा रिटेन्ड है और ऊपर वाला हिस्सा हमने रिमूव कर दिया, राइट। अभी ऑब्जर्वर अगर इधर से देखता है, ये सेक्शन प्लेन है, इसका ट्रू शेप लेने के लिए ऑब्जर्वर ने परपेंडिकुलरली ऑब्जर्व करना है, राइट। सो व्हेन द ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, he will get this sectional front view. When he is looking from the top, he will get the sectional top view, and when he is looking perpendicular to the section plane, you get the true shape of it, right. To get the true shape, what we do is, with the help of protractor, we draw 90 degree line from each and every point, right. वो कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक 90 डिग्री प्रोटेक्टर से मार्क करेंगे, राइट, और एक लाइन बनाएंगे, और जहाँ जहाँ हमारा चेंज ऑफ प्लेन हो रहा है, ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है फ्रंट व्यू के लिए, इस डायरेक्शन से ये चेंज ऑफ प्लेन हो रहा है, ये एक प्लेन है, एक प्लेन है, तो फ्रंट व्यू में देखो आपको एक एज मिलेगा, राइट। सो ए बी बोले तो ये साइड हो गया ए बी, और ये प्लेन यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है तो आपको क्या मिलता है? एज मिलता है, राइट। सो हर एक एज से जहाँ पे चेंज ऑफ प्लेन हो रहा है, वहाँ से हम क्या करते हैं? रूलर स्केल से प्रोजेक्टर
मार्क करेंगे, राइट। So we mark the projector this way. Now we can extend the line further. Let this be construction line. Now with the help of ruler scale, we draw line x1 y1, right? It has to be out of the figure, so you draw line x1 y1, right? So this is what, this is xy, this is xy line, so this is x1 y1. अब हम ट्रू शेप की प्रक्रिया में हैं, राइट। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज वी मार्क द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टॉप ऑन द प्रोजेक्टर्स टू गेट द ट्रू शेप. हाउ डू वी डू इट, राइट? सो इसका लोकस इधर से इधर जा रहा है और इधर से आगे बढ़ रहा है. सिमिलरली ये लोकस इस पॉइंट तक यहाँ तक जा रहा है जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है, वहाँ से ये प्रोजेक्टर आगे बढ़ रहा है परपेंडिकुलर. यहाँ से आपका लोकस जा रहा है, चेंज ऑफ प्लेन एज मिल रहा है, सेक्शन प्लेन से इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ से ये प्रोजेक्टर आगे बढ़ेगा. सो दिस इज हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड 4 प्रोजेक्टर्स. सो वी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम XY. x1 y1 है तो XY से डिस्टेंस मेजर करना है और इस लाइन पे लेके जाना है और मार्क करना है, राइट. नेक्स्ट we measure the distance of B. Keep it on x1 y1 on the same locus. ये डिस्टेंस लिया हमने कंपास में, दिस डिस्टेंस, और इसका लोकस जो है यहाँ पे रखेंगे x1 y1 पे हम पॉइंट और कट करेंगे. सिमिलरली दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज द सेम. सो वी, इसका लोकस कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ पे आगे बढ़ेगा, राइट. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, राइट. सो वी हैव मार्क्ड इट ओवर हियर. नेक्स्ट इज दिस डिस्टेंस 4, डी का डिस्टेंस. ये डिस्टेंस यहाँ से उठाया हमने, ये लोकस से ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, और इसका जो प्रोजेक्टर है यहाँ से प्रोजेक्टर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे, राइट. नेक्स्ट इज वी हैव E. सो वी पिक अप दिस डिस्टेंस, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे करेंगे. दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज one and the same. We mark this on this locus, right. So this is how we get the true shape. So to label it, how would you label it, right? So this is 1 dash, so you can say this is 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 and 6 1. So we try and connect these points and let us see what we get. So we get a shape like this. So this is the true shape. So when the observer is looking from this direction towards the section plane, this shape is obtained. This is called as what? This is called as true shape. So true shape को भी हमें ऐसा hatching करना पड़ेगा, right? So we try and hatch the line. So this is how you get the true shape, right? So when the observer is looking from this direction towards the section plane, so that the observer is perpendicular to the section plane, this is what, when this half is removed, such shape is obtained. This is called as true shape. This is called as sectional front view and this is called as sectional top view. आपको ऐसा लेबलिंग करना है ताकि
जो आपका पेपर चेक करेगा, आपका फिगर देखेगा, उसको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा व्हाट इज़ व्हाट, राइट। अभी प्रॉब्लम में हमें तो सेक्शनल फ्रंट व्यू साइड व्यू बोला नहीं गया है, सिर्फ फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और ट्रू शेप के बारे में जिक्र किया है, और साथ ही साथ हमें बोला है कि आपको डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस भी बनाना है, दैट इज़ द DLS, राइट। सो फॉर प्रिज्म DLS कैसे करना है। अब डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस मतलब क्या है कि इमेजिन ये जो प्रिज्म था आपका हेक्सागोनल प्रिज्म, इसको हमने पेपर से रैप किया, इसको कट किया, है ना, इस पोर्शन को रिमूव कर दिया, सेक्शन ऑब्टेन कर लिए। अभी जो पेपर इसको सॉलिड को रैप किया था उसको हम क्या कर रहे हैं, कट करके उसको एक शीट ऑफ पेपर प्लेन टेबल पे या फिर एक प्लेन बना रहे हैं उसको, तो उसका शेप कैसा रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस, राइट। सो बेसिकली for DLS we imagine that the solid is enclosed in a wrapped in a thin material such as paper. If this covering is opened out and laid on a flat plane, the flattened out paper is the development of the solid. Thus, when the surface of the solid are laid out on a plane, the figure which is obtained is called as development of lateral surfaces. तो हमें साइड ऑफ हेक्सागोन कितना दिया है, 40. Hexagon has got 6 sides, so 4 6 are, right, so we have 240 mm, right. So accordingly what we do is we take this distance in the compass, जो 40 दिख रहा है आपका साइड का डिस्टेंस, we can mark this in the compass, right. डेवलपमेंट आपका बगल में ही आएगा and we will mark the points, say 1 2 3 4 5 and 6. So we have obtained these points, right. So we'll label the points with the help of roller scale. We'll complete this into a rectangle, है ना। प्रिज्म का हमें डेवलपमेंट कैसे मिलेगा, हमें एक बड़ा रेक्टेंगल मिलेगा, right. So we have this rectangle with us, and now what we do is प्रिज्म के ये जो फोल्ड्स है, ये जो साइड्स है, राइट, 40 डिस्टेंस है हमारा, टोटल पेरीमीटर रहेगा उसका, and we extend this line. These are the edges of the prism, right, around which ये पेपर हमने wrap किया था, अभी उसको क्या कर दिया, अनफोल्ड कर दिया, right. So we can label this point such as, you know, like capital A, B, C, D, E, F and वापस से A. ये हो गया अपर फेस के नाम. लोअर फेस में क्या था हमारे, G, H, I, J, K, L और वापस से G, राइट. ये काफ़ी आसान है. विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल हमारा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, G पे है इंटरसेक्शन, अभी हमने यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट कर लिया, तो ये यहाँ पे कट होगा पॉइंट, यहाँ पे आप 2 B, H और F, L पे आ रहा है, राइट. सो B, H और F, L पे पॉइंट मिलेगा, राइट. नेक्स्ट इज 3 and 5 comes on where, 3 comes on CI. सो यहाँ से आप प्रोजेक्टर गिराओगे और CI पे पॉइंट मार्क करोगे, राइट. और 5 कहाँ पे मिलेगा, EK, यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, राइट. एंड D
is on this corner, right? So प्रिज्म में हम जब भी कर्व्स या फिर डेवलपमेंट करते तो हमें क्या मिलते हैं अक्सर? We get straight lines. So with the help of straight lines we connect them, right? So we try and connect and get the figure. Look what we obtained. So this is how you connect the points. You get the development of lateral surfaces. And now you can label the point 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, and back to 1, right? So this is called as development of hexagonal prism. Right? Clear? Is it clear? Right? So this is, let us revise once again. What was given in the problem was we are provided with a hexagon prism, right? It's a prism and it is cut in such a way that the orientation of the section plane is given: left bottom corner and top extreme right corner. This is how it is cut. सेक्शन प्लेन से हमने क्या किया, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिले ये मेथड से. उसके बाद हमने प्रोजेक्ट किया तो हमें इसका ट्रू शेप मिला, जिसके डिस्टेंसेस हमने टॉप व्यू से लिए. x1 y1 है तो डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करना है? x y से, राइट? सो वी हैव ऑब्टेन सेक्शनल फ्रंट व्यू, दिस इज सेक्शनल टॉप व्यू, right? This is the true shape of the section and this is the development of hexagonal prism, right? So I hope you're clear with the concept of the problem. Do like and comment in the comment box. Thank you.